पैसे के मतलब जितना पैसा उन्होंने जीता होता है उसके 1%, 2% तक भी होता है जिनके पास में. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कितने होते होंगे? Less than 5%. Any idea? Yeah, so the percentage is less than 1. Yes. पूरी दुनिया में जो भी लोग लॉटरी जीतते हैं उनमें से केवल 1% लोग 5 साल के बाद में पैसे वाले होते हैं. Why? Why so? Because they don't have the mindset. Rest everything. Resources will not do anything if you don't have the mindset. So that's most important. So friends, we are going to be talking about it. Mr. Gary Robert. Robert is Robert. Normally Robert is Robert there, you know. So that's the way he is the person, and he has written a wonderful book on this, and he has given some tips on that how to go about it, what are those magical thinking, how it makes. So what we are going to be. So are we working on our mindset? Are we working on our mindset? Because the most important, the abundance comes only from the mindset. It's not somewhere else. It is within us. And I think each one of you will appreciate and understand that whenever we work with our mindset, we get a powerful result. We get a better result. We get a very, very extraordinary results. कल तक जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, असंभव लगती है, वो आज संभव हो जाती है. क्यों होती है? बिकॉज हमने पहले अपने आप में सोच लिया, यू नो. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो प्लीज, whenever you are thinking about money or being wealthy, create that kind of a mindset, because it's very important. If you are having a struggling mindset, if you are always thinking of something worrisome, if you are thinking ये नहीं होने वाला है, ये असंभव है, ये possible नहीं है, I don't think you will be ever wealthy. I think one constant thing I have observed in the wealthy people, because I meet lots and lots of people, those who are multi-billionaires or having a huge, they are positive mindset people. Always find that people those who are positive mind frame have a better wealth, better abundance, better everything with them. So first law which is there, sowing and reaping. In my life I have multiple times seen this. मैं पहले इसको फार्मिंग, मैंने खुद में इसको अपने आप में लाइफ में यूज किया है. मैं बोलता हूँ, मैं कई बार फार्मिंग थ्योरी कहता था. व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक पूरा बीज का भरा हुआ पड़ा है, मुझे नहीं मालूम उनमें कौन से बीज है. सेब का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है, नारियल का भी हो सकता है, कोई और हो सकता है. मुट्ठी भरते जाओ और फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ. एंड आई थिंक व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली कुछ बीज मर जाएंगे, नहीं जन्मेंगे, और कुछ बीज आफ्टर सम टाइम्स अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगे और बड़े बड़े वृक्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे. आई थिंक, आर यू थिंकिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट? Are you thinking from that we have to work on opportunities, and not only by saw is a cause, but effect is a right. जब बाहर निकल के आता है तो उसके ऊपर और वर्किंग करनी पड़ती है. और दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि जब हमने कोई एफर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे को अपना खुद का कोई भी चीज़ हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर देखते हैं तो हमको अपना एफर्ट डालना पड़ता है. वी हैव टू पुट आवर एफर्ट. It can't happen just like that. It has to be that we have to put effort with that. So that's very important. Where you sow, you will reap. तो हमने अपने आप में बार इस बात को सुना है, बचपन से सुना है कि जो आप डालोगे, बोओगे, वही आप पाओगे. So are you building that kind of a mindset with yourself? Are you thinking that yes, I want to be a millionaire, I wanted to be a millionaire, going forward? We need to think from that. You can't sow one seed, can't get another thing. मतलब आप वो तो हो ही नहीं सकता कि आपने नीम बोया और आप सोचो कि आम का इसमें से फल आने लग जाएगा. That's not possible. So please work on your mindset. And in business, that's the most important thing, that you have to work with your own self, that how I will create an abundance, how will I create a wealth. So that's what is the first law, which is you will reap what you will sow. I think that's the same. This is constant. This is constant. This is something which is constant, that you have to always think about it. Always think about it, that what I will be doing, how I will be doing, how will be 5 years. Because यदि हम पेड़ लगा रहे होते हैं तो उसका फल कब आता है? 5 साल बाद, 4 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने फ्रूट का पेड़ लगाया तो थोड़ा देर होती है. फसल लगाइए, अनाज लगाएं, पल्सेस लगाएं तो हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में आ जाए. तो डिपेंड करता है. यू हैव टू थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट इट कि मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ, हाउ लार्ज आई एम बिल्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम बिल्डिंग.
you know, this is one very important thing. आपने पोल्स का नाम सुना होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड हमारे जो मैग्नेट होते हैं उसके अंदर भी पॉजिटिव साइड होता है और नेगेटिव साइड होता है. हर चीज के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है. व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद समथिंग यू विल फाइंड अ रिजल्ट. सबसे पहले हमारे को कोई भी दुनिया में क्या बताता है, अरे यार इसका तो ये प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस हैं, ये चीजें हैं, या ये इसलिए नहीं हो सकता है. उनका कॉन्ट्रेरियन जो होता है ना, उसका सोल्यूशन होता है. जब भी आप कभी भी वर्क करने लगोगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई तो आपको कोई लोग बता देंगे कि ये 5 चीजें, इस कारण से ये 5 चीजें नहीं हो सकती, इस कारण से ये 5 चीजों के कारण ये चीज नहीं हो सकती है. इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दीज 5 थिंग्स. सो प्रैक्टिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक कॉन्ट्रैरियन, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड, यू हैव टू थिंक कि इनके बियॉन्ड क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है. एंड आई हैव ऑलवेज सेड पीपल कि हर चैलेंज के नीचे अंडरलाइंग अपॉर्चुनिटी होती है. हर चैलेंज के नीचे, दुनिया के सारे चैलेंजेस के नीचे अंडरलाइंग अपॉर्चुनिटी होती है. और द पीपल दोज हु मेड वेल्थ आर द पीपल दोज हु फाइंड दैट. Those who struggle with that, challenges, got finished, they don't make money. But the people those find that opportunity which is underlying that challenge, make that, and that is happening because of your contrarian mindset, because of your challenging that challenge. कि यस ऐसे नहीं होता, अरे कोई बात नहीं, मैं इसके और रास्ता खोजूंगा, मैं इससे और बियॉन्ड जाके सोचूंगा, मैं इसको और डिटेल में जाके सोचूंगा कि कैसे हो सकता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट whenever you find something bad, find कि इसका गुड क्या हो सकता है. What can be a good problem there. हम में से कितने लोगों ने कोरोना के बाद में अपने बिजनेस के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाए? कितने लोग हैं? कोरोना क्या था? A bad situation, not a good situation to have. It's and totally uncertain. मालूम ही नहीं क्या होगा. बहुत सारे लोग तो मार्च अप्रैल मई में फ्रोज थे. They were not knowing कि कल क्या होगा, हो सकता है दुनिया खत्म हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, उस सारी सिचुएशन में थे. और उनमें से क्या किया? पिविट किया. कई लोगों ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा बिजनेस पिछले 2 सालों में किया है. ऐसे लोग होंगे इस रूम में बैठे होंगे जिन्होंने अपने लाइफ के बेस्ट ईयर्स, लास्ट 2 इयर्स गए. क्यों गए? क्योंकि आपने कॉन्ट्रेरियन तरीके से सोचा. आपने इसको, यदि आपको स्टक हो जाते कि यार ये तो एक प्रॉब्लम है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दुनिया खत्म हो जाएगी, यू वुड हैव नेवर ग्रोन. बट व्हाट यू हैव डन, यू चैलेंज दैट चैलेंज. आपने उस चैलेंज को चैलेंज किया कि नहीं, कोई बात नहीं, आई विल थिंक डिफरेंटली, आई विल थिंक बियॉन्ड दिस, एंड आई विल थिंक मच पावरफुल. So that's one law which this. So everything takes its time. मतलब अभी हम यदि पेड़ भी लगाते हैं तो इमीडिएटली जनरेट नहीं हो जाता है. इट टेक्स टाइम, मतलब उसको समय लगता है. तो कभी भी आप किसी भी अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहे हैं, मैं इसको चैप्टर के साथ में भी रिलेट करता हूँ. यदि बाहुबली की बात करें तो आज के 2 साल पहले क्या था? 12 का चैप्टर था. यदि उस दिन की सिचुएशन देखते तो क्या थी? नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड. बट व्हाट इज टुडे? Outstanding. How many chapters are there above 100? 6 chapters, and they are one among them. Place of abundance. Now people will be queuing to join Bahubali. So that kind of a situation. ये कब होता है? जब आप आइडिया को नर्चर करते जाते हो, उसके साथ में मेहनत करते हो, उसके साथ में कंस्टेंटली मेहनत करते हो. 4 प्रेसिडेंट्स ने अपनी पूरी जान डाल दी, तब जाके हम यहाँ पे पहुंचे. So you have to understand that whenever you are working on an opportunity, it's very important for a millennial mindset. Because if you are working on some opportunity, you constantly work for it. Constantly work for it. There will be a situation, जैसा मैं वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा था कि कदम ताल कर, कई बार ऐसा होगा कि आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा. कई बार आपको वॉल आ जाएगी सामने, दिखाई देगा कि रास्ता है, आपको गेट नहीं नजर आएगा, आपको लगेगा अब क्या करूँ. But the most important thing at that time is to keep your energy high. To keep your energy high, because यदि आप उस समय पे डाउन हो जाओगे तो और रास्ता और नहीं मिलने वाला. हो सकता है ये जस्ट एक फेज हो, एक टाइम हो सकता है जहां पे आप नहीं देख पा रहे हो वहां पे गेट हो सकता है आपके पीछे हो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है. लेकिन यदि आप एक्टिव रहोगे तो certainly you will find that. So that's very important that you have to take good time for creating wealth. It's not overnight. कभी बार हम कहते हैं ना कि overnight success took 20 years. एक रात की जो सफलता है वो दिखाई देती है, लेकिन ऐसी 20 साल की रातें थी जो सोई नहीं. हम we were putting an effort for that. So whenever you are working for something large, something big, it will take time. It's going to take time, and please be patient. Because
मैंने एक चीज वेल्थ क्रिएशन में मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि स्मार्ट आदमी जीतेगा कि डिसिप्लिन आदमी जीतेगा। वेल्थ कभी भी स्मार्ट आदमी नहीं करता है, कभी भी स्मार्ट। यदि आप जाके बात करेंगे वॉरेन बफे की या किसी की भी, तो इसलिए वो जबरदस्त नहीं है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए ज्यादा जबरदस्त है क्योंकि वो डिसिप्लिन है। पिछले 40 साल से कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, 40 साल से अपनी पॉलिसीज का मेंटल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर चार्ली मुंगर क्रिएट्स लॉट ऑफ मेंटल मॉडल्स फॉर इन्वेस्टिंग, सो वो इंपॉर्टेंट है। सो आप में से भी लोगों को यदि किसी को बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी, क्या होगा? कॉन्स्टेंटली। आप में से कितने लोग हैं जो SIP करते हैं? कितने लोग जो इंश्योरेंस की पूरी प्लानिंग करते हैं? आई डोंट नो। आर यू डूइंग एन इंश्योरेंस ऑडिट फॉर योर ओन सेल्फ? इन द मंथ ऑफ जनवरी आर यू सिटिंग कि भाई मेरे ये रिस्क कवर है? क्योंकि हमारे पास में रिस्क ही कवर नहीं होंगे तो हमने एक बहुत बड़ी चीज अपने लिए ओपन कर रखी होगी। आई एम नॉट promoting any profession, but I'm saying when you are creating wealth, you need to be conscious of that. And whenever you are young, and create a habit of saving in your kids very early on, very early on. Please tell your kids, तू 500 रुपए बचा बेटा, लेकिन हर महीने बचा कॉन्स्टेंटली। आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो कितना बड़ा क्रिएट हो जाएगा। सो टेक टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड स्पेशली वेल्थ टेक्स टाइम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि 25 साल में X दिखाता है, और यदि 30 साल कर देते हैं, केवल 5 साल बढ़ाते हैं, तो 5x हो जाता है। 5x हो जाता है। क्यों हो जाता है? That's the power of discipline. कि आप बिल्ड करते और एकदम एक दिन वो होता है। So that's another thing which he wanted to be patient and don't blame. I think none of us should blame ever. Law of vibration. In order to achieve greater and most increase the level of thinking, you have to always frequently create the larger frequencies. बिजनेस में एक चीज मैंने कई सारे लोगों को बोला है कि आप अपॉर्चुनिटी, यदि मान लीजिए 95 के FM के बैंड पे प्ले हो रही है और आप 92.1 पे ऑपरेट करते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 95 पे जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज एनहांसमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप को टूल्स के साथ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें जो मेरे को उस लेवल तक ले जा सकती है जहाँ पे कि अबेंडेंस है, जहाँ पे कि वेल्थ है। So constantly you have to develop yourself. Constantly you have to work with. When he's saying for a law of vibration is nothing but activity. Being working with your own self. Constantly आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो भी स्किल्स आपके पास में हैं, यदि उन्हीं के ऊपर वर्क करोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचे हो, उससे आगे नहीं जा सकते। Every year you have to invest on your own growth. Every year you have to work on your network. Every year you have to work on multiple other things, multiple other knowledges, infrastructure for that matter. हो सकता है कि आपकी नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ही नहीं करता। आप अभी भी 4 आदमियों के साथ ही काम चलाते हो, अभी भी आप सैलरी बढ़ाने में ही उलझे हो। मैंने अपने एक मेंटोर से एक चीज को समझा था जो मेरे को बहुत बड़ी लगती है। एक समय के बाद में आपकी ऑफिस की दीवारें, आपकी सोच जो है ना, आपके ऑफिस की दीवारों के साथ में टकराने लग जाती है और आपको ग्रोथ नहीं होने देती है। तो आपको क्या करना पड़ता है? ऑफिस को बड़ा करना पड़ता है। So if you are sitting in a small office and you're thinking of too large, it's not possible. When you are going for an expansion, always think 3 times. If you have staff 20 people, plan for 60 people sitting. Always do that. I have done that. खत्म हो गया जो 2012 में बताया। उसके बाद में आज की तारीख में 3 ऑफिस और लेने पड़े और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। जिस दिन 1 फ्लोर की जरूरत थी वहां 4 फ्लोर बनाए। So I think we have to think from that, and it's very important. That kind of and sometimes हमको लगता है हमारी नॉलेज पे ही वर्क करने से होगा। नहीं, नेटवर्क पे भी वर्क करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्क करना पड़ेगा, रिसोर्स पे भी करना पड़ेगा, मूवेबिलिटी पे भी करना पड़ेगा। हो सकता है आप एक ही ज्योग्राफी में रॉबर्ट क्विंस्की इंडिया में आए थे, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, दिल्ली में उनको सुनने गया। बहुत ही एक बहुत बड़ा की टेक अवे उन्होंने लिया। दुनिया में लोग पैसा कमाना चाहते हैं और वहीं कमाना चाहते हैं जहां वो रहते हैं। यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी। पैसा तो आप कमा सकते हो, लैंड में ग्रोथ होगी, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी, लेकिन हो सकता है सूरत में नहीं हो सकता है वापी में हो, वलसाड़ में हो, बॉम्बे में हो, बट आपको यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
Sometimes you have to change geographies to understand that. You have to go, may not shift permanently, but you have to go. You have to go out of your comfort zone. इस पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर तक 140 दिन ट्रैवल किया. 140 days I must have traveled out of 210 or 200 days. 140-130 दिन ट्रैवल किया. कहाँ बैठे हैं? अतुल जी जिम्मेदार हैं. So क्यों? क्योंकि we have to think beyond and we have to go beyond. Now to ये जो चीजें हैं ना, ये 5 मेरे लाइफ के हैं लेसन. इससे बुक का कोई लेना देना नहीं है. ये मेरे अपने जीवन के अंदर जो 5 नियम मैं पालता हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड डिक्लेरेशन. These all things will make you wealthy. I promise. Never get stuck in any kind of a criticism. Never criticize anybody. Never be part of any kind of a negativity. Never. Always think beyond. Always talk about. मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बहुत बढ़िया बात बताई थी. आज के करीबन 25 साल 30 साल पहले उसके वो मेरे साथ में नौकरी करता था. उसके बोर्ड के ऊपर एक चीज लिखी हुई थी, आज तक मुझे ध्यान है. You know, small minds talk about people, average mind talks about things, and great mind talks about ideas. 25 साल पहले उसने अपने बोर्ड के ऊपर लिख रखा था. हमने नौकरी चालू की थी, 3 महीने 4 महीने होंगे, और ये लिखा हुआ था उसके वहां पे. मनीष रैना मेरा दोस्त है. तो मैंने कहा यार अमेजिंग था, क्या चीज है यार. उस दिन से वो चीज स्ट्राइक करी कि लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, चीजों के बारे में बात नहीं करनी है. किसी की BMW, किसी की मर्सिडीज, किसी की जगुआर से इफेक्ट नहीं आने देना है. ये नॉनसेंस है. ये सबसे बड़ा बेवकूफी है. क्या बात करनी है? आइडिया. क्या कल होगा, कल क्या होगा, 2037 में क्या, 2040 में क्या, 2035 में क्या, हम कैसे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के ऊपर जा सकते हैं. दैट्स द थॉट. दैट्स द थॉट. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड डिक्लेरेशन. ऑलवेज हैव अ डिक्लेरेशन विद योरसेल्फ. मैं ये करूंगा. 2000 कई बार कई लोगों से बात करते हुए 2030 के अंदर इंडिया, सूरत जो है वो भारत का आर्थिक राजधानी होगी, फाइनेंशियल कैपिटल होगा. अरे कोई फांसी थोड़ी चला देगा नहीं होगा तो मेरे को. मैं बोल रहा हूँ ना पिछले 3 साल से 2032 में होगा, और कोई बड़ी बात नहीं 2030 में भी हो. सो डिक्लेयर तो करो, बड़ी तरीके से बोलो. सही, ये कलेजा तो रखो. व्हाई नॉट? Somebody sometimes have thought we may have gotten independence in 1947, but रानी की झांसी ने तो 1857 में देखा था. 90 साल लगे, कोई बात नहीं, लेकिन मिली. And that happens for every one of us. We have to plan, we have to think. एक आदमी सोचता है दूसरे से क्या होगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप भी 25 लोगों को बोलोगे, 25 लोग और 25 लोगों को बोलेंगे, 25 लोग और 25 लोगों को बोलेंगे. क्या बोलेंगे? 2 लाख लोग कल बोलने लग जाएंगे भारत की आर्थिक राजधानी कौन होने वाली है. खत्म हो गई बात, खत्म हो गई. That's the power of imagination. ताजमहल कितनी बार बना? 3 बार. कितनी बार? 3 बार. अच्छा, मेरे को तो 2 ही बार मालूम था. सो ताजमहल सबसे पहले बना शाहजहां के दिमाग में. पावर ऑफ इमेजिनेशन. उसने देखा यार ऐसा होगा, सफेद पत्थर होगा, जबरदस्त होगा, गुंबद होगा, ये होगा, फला होगा, ढिमका होगा, जो भी उसने सोचा होगा. सो दैट एंड देन वो मूव थ्रू हुआ यमुना नदी के तट में. That's kind of. Are you having a very loud power of imagination? Always think about things. यदि आपको गाड़ी चाहिए ना, तो साला ऐसा इमेजिनेशन करने का एकदम सारा सेट लाल कलर की गाड़ी होगी, उसकी जो सीट होंगी वो प्योर लेदर की सीट्स होंगी, ये होंगी, वो होंगी. Go to that detailing of imagination. यदि आप अपने बंगले की प्लानिंग कर रहे हो तो गो टू दैट लेवल ऑफ इमेजिनेशन. साला शावर किस लेवल का लगा होगा, उसके ऊपर से वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ऑटो टेम्परेचर सेट होगा कि क्या होगा, कि प्रेशर क्या होगा. यू नो दैट काइंड ऑफ अ माइक्रो लेवल ऑफ इमेजिनेशन. इफ यू डू दैट यू अचीव दैट. आई हैव अचीव्ड थैंक्स टू गॉड. I have done that kind of a conversation with myself and I found कि मैं देखता हूँ यार 5 साल पहले यही तो सोच रहा था यार, यही बन गया. अमेजिंग था, सुपर. लेकिन वो क्या होता है, आप में से बहुत लोगों ने सक्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा होगा. आई थिंक यू मस्ट सीक्रेट आपने देखी होगी, तो आप लोगों को आइडिया होगा. तो आई प्रैक्टिस इट एंड आई डेली प्रैक्टिस इट.
So power of imagination, law of imagination is very important. Power of association. You are average of the 5 people you are associated with. Very conscious. मैं सुबह यश को बोल रहा था, मेरा son है, खड़े उठा. So Yash is my son. He is, educating himself in University of Toronto. And would you like to share something about it? So right now I completed my second year from University of Toronto, and abhi I am in Mumbai pursuing my internship from KPMG within the valuations team. वहाँ पर deal advisory में I've been for 3 months and 1 more month to go. Thank you. So when I was coming with him in the morning, I was telling him one thing. लाइफ में जो कुछ है ना वो पावर ऑफ एसोसिएशन है. मेरे मोबाइल के अंदर सब लोगों को मालूम होगा 18,700 से ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है. कोई इससे ज़्यादा वाला मिले तो मेरे को बता. 18,700 कॉन्टैक्ट नंबर है. एक्विंटेंसेस हैं, जानकारियां हैं, दोस्त नहीं है मेरे, दोस्त नहीं है वो मेरे को तो 5 या 7 हीरे चाहिए, गोल्ड चाहिए, जो मेरे ऊपर वर्क करते हो, जो रात को मेरे को मैसेज पूछते हैं, यार ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, कैन वी गो अप, अपने को चैलेंज करते हो, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, आपके साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के ऊपर वर्क करता हूं. एंड आई हैव दैट. आई एम सो फॉर्चुनेट अबाउट इट. आई हैव दैट एंड आई एम वेरी कॉन्शियस इन selection of friends. I will be known to everyone, but when it comes to friendship, I am very selective. I will not go beyond. I will make sure. मैंने बचपन से एक चीज़ को हर समय ध्यान रखा है. मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, मैं कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूँ तो बहुत सारी नेतागिरियाँ की, बहुत सारे दोस्त रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर मैंने हर समय अपना संज्ञान रखा है कि always the gold and the jewel and the platinum people should only come in my first circle. Allowed ही नहीं है. तो एंड कहाँ मिलते हैं वो लोग, कहाँ मिलते हैं? इस रूम में मिलते हैं. The power of association यहाँ है. Find your 5, 7, 10, 12 people जो आपको चैलेंज करते हो और आपको एक लेवल ऊपर लेके जाते हो. एक लेवल आपको ऊपर लेके जाता हूँ. भाभी यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर मनीष जैन मेरे वो फर्स्ट सर्कल है. इन हस्बैंड एंड वी आर फैमिली. सो हम मतलब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं थैंक यू भाभी. सो उनसे चैलेंज हो रहा होता. मुझे कई बार ऐसा 7 साल पहले कोई बात कही, मुझे लगता है यार ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आज याद करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार सो रिलेवेंट. शायद मैं उस समय मैच्योर नहीं था उतना उस चीज को समझने के लिए. सो वो अपने को आज लग रहा होता है. That's, I think you need to have those 5 people, 7 people in your life, those who make you fine, those who make you better, those who make you much better version of your own self, and that is called power of association. Power of knowledge, no substitute. नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आपको सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, अपने से बेहतर लोगों से जानना पड़ेगा, और यदि वो सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो देखने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी. ऑलवेज यू हैव टू बी हैविंग पावर ऑफ एवरी टाइम रीड, एवरी टाइम जो समय मिलता है. कोई लोग कहते हैं मेरे को बुक पढ़ने का, कोई बात नहीं यार पॉडकास्ट सुन. मेरे को ये नहीं है म्यूजिक की तरह सुन, बुक आजकल तो इतनी सारे ऑडियो बुक्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो प्लीज एक्वायर नॉलेज. सबसे बड़ा साथी होता है नॉलेज. आपको जो भी, आपको कोई भी बिजनेस में आप हो, किसी भी बिजनेस में हो, आई कैन टेल यू बिगेस्ट सपोर्ट टू यू इज योर. आज मान लीजिए मैं श्रेयांश की बात करता हूँ. श्रेयांश, यू डील इन प्लाईवुड एंड अदर थिंग्स. 1 मिनट, यदि आपकी नॉलेज अच्छी हो तो क्या आपके साथ आर्किटेक्ट काम करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि आप नॉर्मल आदमी की तरह बेचते हो कि भैया ये 7 तरह की प्लाईवुड है, ले लो आपको जो है, यदि आप डीपर लेवल पर जाते हो और उन 7 प्लाईवुड की आपको वैरायटी मालूम है, उनकी क्वालिटी मालूम है, उनकी एप्लीकेशंस मालूम है कि यार किचन में तो ये लगेगी, बाथरूम में ये लगेगी और बेडरूम में ये लगेगी, तो विल आर्किटेक्ट वर्क विद यू और नॉट? विल यू गेट मोर बिजनेस और नॉट? दैट्स द काइंड ऑफ. So you have to, thank you Shyam. So that we have to do. We have to go to that level of knowledge. And the last and the most important, जो सर ने बात करी, proactive. I will not leave if I decided ये करना है, मतलब मैं चिपक जाऊंगा उसके. मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे उनके फोन पहुंचने से पहले उनका फोन बंद हो सकता है, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो 4 बार मैसेज डालूंगा, जब वो देखेंगे तब I will get the reply. And I've done that. I do it today. आज भी करता हूँ मैं, आज भी वही करता हूँ. कोई कहे क्या भूखे साले थे वो अभी तक नहीं काम है, because I want to live on it. आप में से कितने लोग हैं जिसने 700 of highly effective people पढ़ी है? उसकी फर्स्ट हैबिट कौन सी है? फर्स्ट हैबिट है उसकी
उतने समझदार आदमी ने बुक लिखी, 7 हैबिट बनाई और साथ में भी सबसे पहली बनाई बी प्रोएक्टिव, क्योंकि उसको क्यों लगता था? तो लगता था यही सबसे बेहतरीन हैबिट है, अनबिलीवेबल है। So whatever you want to do, be proactive. Be proactive. Take time in taking decision, but when you decide, go all out. Go behind that person. He may not give somebody, if you are looking for a time of somebody, he may not give you once, twice, thrice, 4 times, 10 times, 11 times. मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज सिखाई जिसको मैं जीवन में ध्यान रखता हूँ। बोलता दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा है वो खुलता नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया दुनिया में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खुलता नहीं है। आप में ताकत होनी है कितनी बार नॉक कर सकते हो। आपको ताकत होनी है कि आप कितनी बार नॉक कर सकते हो। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 500 बार खोलूंगा सवाल नहीं होता। तू थक जाएगा अंदर बैठे में ताला नहीं खोलेंगे, मैं तो बाहर से लगाता ही रहूंगा। You know that kind of a proactiveness and that brings health. So these are the 5 life lessons of myself. किसी से पाया नहीं है, कोई बुक में पढ़ा नहीं है, खुद ने अपने 20 साल में जो कुछ पाया है वे 5 लॉ हैं और इनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करता हूँ। आप में से कोई भी पाए कि मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को आके जरूर बताएं कि यार तू ये करता नहीं है। So thank you, thanks a lot, thank you. Quick sharing, yes, Ritesh bhai, please. Yeah, I'm just coming. Good morning. My name is Nitesh. My company name is Maharana Foods, and I'm a support ambassador in the Ali chapter and member of BA program. Okay. One thing I have learned is 3 types of people in the world. One is small. वो सिर्फ people के बारे में बात करते हैं. जो average people है जो things के बारे में बात करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ideas के बारे में बात करते हैं. And like that, noted the key takeaways. That's wonderful. Last 2 sharings. Anyone? Yes, Shrenik. Please come forward. Thank you. Myself Shrenik Shah from Nature Protect and member of Benchmark chapter. तो हमेशा मैं गौरव सर का कोई भी स्पीच होता है उसमें हर बार कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग चीज। तो सबसे बड़ी आज का मेरा जो टेक अवे है कि आपका जो स्टाफ है उससे 3 गुना बड़ा ऑफिस आप लीजिए। ऑल्दो आई एम लुकिंग फॉर द ऑफिस और मुझे बहुत क्लियर विजन मिल गया कि कितना बड़ा ऑफिस लेना चाहिए। एंड सेकंड थिंग एक खाली करेक्शन करना चाहूँगा, गुड थिंग्स टेक्स टाइम बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ये मत सोचिए कितना टाइम लेगा। अगर सोचेंगे लंबा टाइम लगने वाला है तो लंबा टाइम लगेगा, अगर नहीं सोचेंगे तो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और गौरव सर का एक चीज है कि लेफ्ट पे अगर ब्लैक बालू है, राइट पे व्हाइट बालू है। व्हाइट बालू जो है हमेशा अच्छी बातें आपको सिखाता है, अच्छी बातों की साइड लेता है, और ब्लैक वाला जो है अगर खराब चीज है आपको प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह सिखाता है। तो 2 में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग वो है जिसको आप फीड करते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट टेक अवे। थैंक यू। Thank you so much. Yes, last from Kina. This is Kena Manchwalkar from Quantum Chapter TV. Yes, my takeaway is the power of association and being a coach myself. I've done that कि आप जिनके साथ रहते हैं वही आपका power house बनता है. And being here in LTRT makes one of them, and having a team that is there in my chapter is of course there. And one thing I would like to say, 2011 I was in the airport of Bangalore, and that is when I have actually met Murli sir, and he may not remember of course. But the power of his aura at that point of time had made sure in my heart that this is who I want to be, traveling the world, and of course in suit of course all the time. Thank you, sir. So always so small. Yes, so exactly power of association, and definitely we are the average of 5 people we move around, and this is the most powerful room, and you move around within this room. So just imagine the power you carry within yourself.